فاتحہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد النبيين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صلوات ارباب اعضاء ذکر کرنا ہے تمنائے قلب سراب کا. اور یہ وقت حضرت ابوالفضل العباس کی شجاعت کے فضائل اور ان کے مسائل کے بیان کا ہے. مگر جب ہم ان کی شجاعت کی بات کرتے ہیں، جب ہم ان کے فضائل کی بات کرتے ہیں، جب ہم ان کے مصائب کی بات کرتے ہیں، چلیے میں کوشش کروں گا کہ آج کی مجلس کو انہی 3 لفظوں میں محدود رکھوں. حضرت ابوالفضل العباس کے فضائل، حضرت ابوالفضل العباس کی شجاعت کا تذکرہ اور حضرت ابوالفضل العباس کے مصائب. تو جب ہم یہ گفتگو شروع کریں گے تو ہمیں یاد رکھنا پڑے گا کہ ابوالفضل العباس وہی ہے جو تصویر ہے حیدر کرار کی، جو رشتہ دار ہیں علی مرتضیٰ کے، جو نمائندے ہیں کربلا کے میدان میں جناب امیر کے. اگر امام حسین علیہ السلام نمائندگی کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند نبی ہیں تو یہ فرزند علی ہیں. صلوات بھیجیں. تو یہ دونوں بھائی نمائندے ہیں اس طرز فکر کے جس کو عمومیت میں اسلام اور خصوصیت میں علویت کہا جا سکتا ہے. صلوات بھیجیں محمد. تو جب حضرت ابوالفضل العباس کا ذکر کرنا ہے تو علویت کا ذکر کیے بغیر کیسے اس زمین تک پہنچے کہ جس زمین پر گفتگو ہوگی کہ عباس کے فضائل کیا، عباس کی شجاعت کیا،
اور عباس کی اصل مصیبتیں کیا؟ تلوار بھیجے محمد۔ جو میں نے موضوع گفتگو منتخب کیا تھا اور میں اسی موضوع کے اوپر کوشش کر رہا ہوں کہ اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا دوں۔ سورہ روم کی 41ویں اور اس کے آگے 42ویں 43ویں پڑھ لیجیے گا آیتوں کے ضمن میں کہ زمین اور سمندر میں، یہی لفظ ہے، زمین اور سمندر میں انسانوں کے، ترجمہ نہیں بلکہ مفہوم سمجھانے کے لیے ترجمہ کر کے باقاعدہ کرنے کا وقت شاید نہیں ہے، انسانوں کے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے فساد پھیل گیا، ظاہر ہو گیا، ظاہر فساد پھیل گیا، چھا گیا زمین پر اور سمندروں میں، زمین پر اور سمندروں میں، بما کسبت ایدی الناس، انسانوں کے ہاتھوں کے کرتوتوں سے، اور اس لیے تاکہ یہ انسان چکھ لے جو عمل کیا کرتے تھے ان میں سے کچھ کا ذائقہ، کچھ کا ذائقہ، ذائقہ کا کو چکھ لے، کہے کو چکھانے ذائقہ لعلہم، شاید کہ ان میں سے کچھ ایسے ہوں جو پلٹ آئیں۔ رحمت خداوندی ہے جو موقع دے رہی ہے کہ تھوڑا سا ذائقہ چکھ لو ابھی اور پلٹ آنا چاہتے ہو تو پلٹ آؤ۔ صلوات بھیجے محمد۔ تو ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسانیت کی شروعات سے جب سے انسان کہلانے کا حقدار ہوا، جب سے آدم آئے، جب سے بنی آدم کی شروعات ہوئی، تب سے دو متضاد طرز فکر ہیں جو ایک دوسرے سے مستقل ٹکراتے آئے ہیں یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے، اور بعثت سرکار رسالت کے وقت جگہ وہ منتخب کی جاتی ہے جو سب سے سخت جگہ ہے۔ باقی انبیاء الگ الگ خطوں میں تشریف لائے، مگر سرکار رسالت کے لیے وہ جگہ اللہ تعالیٰ نے منتخب کی جو انتہائی سخت جگہ ہے۔ اپنے ماحول کے حساب سے جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان کی فکر اور ان کی فطرت کے حساب سے ان کے اندر موجود جھوٹے غرور اور انا کی وجہ سے اور اس ماحول میں تبلیغ کی گئی اسلام کی ضرورت میں نے اور یہ اسلام مساوات کا پیغام ہے۔ لفظ مساوات ذرا سا غلط فہمی پیدا کرتے ہیں۔ اسلام عدل کا پیغام، اسلام عدل کا پیغام ہے۔ بات یاد آ گئی، جناب امین کی بات ہو رہی تھی کہ آپ علیہ السلام سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ دونوں میں سے افضل کون ہے، العدل عدل بہتر ہے، افضل ہے کہ جود و سخا بہتر ہے، عدل کرنا بہتر ہے کہ عطا کرنا بہتر ہے۔ عام طور کے اوپر پوچھنے والے نے بھی اس کی وجہ سے پوچھا ہوگا کہ شاید لوگ کہیں کہ عطا کرنا بہتر ہے، شاید لوگ کہیں کہ عطا کرنا بہتر ہے، کیونکہ اللہ بھی کسی کو بڑھ چڑھ کے دینے کا نام، کسی کو حق سے زیادہ دے دینے کا نام عطا ہے نا۔ میرا حق نہیں تھا، آپ نے مجھے دے دیا، آپ نے عطا کیا۔ میں مستحق نہیں تھا، آپ نے مجھے عنایت کر دیا، آپ نے عطا کی ہے۔ اور عدل کیا ہے؟ جس کا میں مستحق تھا وہ مجھے دیا ہے، اور جس کا دوسرا مستحق تھا وہ اس کو دیا ہے۔ صلوات بھیجے تو قرآن ناطق نے ان چیزوں کو واضح کر دیا کہ اس معاملے میں بھی غلط فہمی میں پڑنا عدل افضل ہے،
बका से अदल अफजल है, वजह भी बयान फरमाते हैं। आमतौर पर जनाब अमीर के जवाबों में यूँ नहीं कि उन्होंने एक जवाब दे दिया हो, छोड़ दिया हो, तो उसकी वजूह, उसकी गुनाह भी बयान की है। फरमाते हैं कि अदल चीज़ों को उनके मकाम पर रख देता है, झूठ चीज़ों को उनके मकाम से हटा देता है। जो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अदल सारी इंसानियत का साइफ, यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, साइफ है, साइफ है। साइफ का काम क्या होता है? घोड़ों के मुनासिब हिफाजत करना। अदल इंसानों का, सारी आवाम के का साइफ है, और युद्ध खवास का आर्जा। सुभान अल्लाह, सुभान ये एक आर्जा है जो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह होता है, जो शान दिखाया करते हैं, या युद्ध ये दिखाते हैं कि तुम हमसे करीब आओ, हम मजा कर देंगे। और यहाँ से अब जनाब अमीर और जनाब अमीर के मुखालिफिन की हमारे बुजुर्ग हैं और जो हमारे साथी हैं, और जो यहाँ माशाअल्लाह छपरे का मजमा एक ऐसा मजमा है कि जिसमें सब लोग शामिल हैं, जिसमें से हर एक की जहनी तरबियत हो चुकी है। आप खुद जानते हैं, एक तरफ जनाब अमीर है, जिनके भाई अगर कहते हैं कि हमारा काम नहीं चल रहा है, हमें बैतुल माल से थोड़ा ज्यादा अदा कर दो, तो गर्म किया हुआ लोहा उनकी तरफ बढ़ाते हैं। क्या अकील, क्या आप इसे बर्दाश्त कर पाएंगे? वही अकील मसलहत के मुताबिक कह लीजिए, हाकिम शाम के यहाँ शाम में दमिश्क में पहुंच जाता है। ये भी अल्लाह की मसलहत में से मामूली आदमी नहीं है, जनाब अमीर के भाई है, तालिब के फरजंद है। वहाँ अमीर शाम ये समझता है कि इससे अच्छा मौका क्या, अली के भाई, और अली ने इनकी सुनी नहीं है, वापस आ गए वहाँ से फ्रस्ट्रेटेड वापस आए, खूब जी भर के उनकी आखिर तवाज़ुन करता है, उनका खाने और सब कुछ, और उसके बाद में कहता है कि कल आप एक बयान दे दीजिएगा लोगों के सामने कि अली ने आपके साथ क्या किया। मैंने क्या किया? फरमाते हैं अली ने जो किया वो दुरुस्त किया, उसने जो किया वो दुरुस्त किया। तलवार भेजे मोहम्मद। अली ने जो किया वो हक किया, तूने जो किया वो नाहक किया। तलवार भेजे मोहम्मद। तो ये एक माहौल है, जिस माहौल की तरबियत अली मुर्तज़ा हमारी जाने फिदा हो कि हमारे लिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई फिक्री असास मौजूद है तो हमें कहना पड़ेगा कि सिर्फ और सिर्फ सलवार भेजा। तरबियत कब से शुरू की थी? जब दावत गुल अशीरा में उन्होंने खड़े होकर कहा था, अना या रसूलल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तरबियत तब से शुरू की, मगर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें बंद हो गई तो तब से मैंने अभी आपसे अर्ज किया था कि मैं अपनी गुफ्तगू को 3 बातों में आज के महसूस करूँगा। हज़रत अबूल फज़ल अब्बास के फ़ज़ाइल, हज़रत अबूल फज़ल अब्बास की शजाअत और हज़रत अबूल फज़ल अब्बास के मसाइल। आइए यहीं से शुरू करते हैं। जनाब अमीर की शजाअत, जिनके वो रिश्तेदार, बताने की ज़रूरत है किसी को, लेकिन जब हम शजाअत जनाब अमीर का जिक्र करते हैं तो शायद हमारी आंखों के सामने जंगे बदर आती है, जंगे खैबर आती है, मजहब को कत्ल करना आता है। हम शायद गालिबन भूल जाते हैं कि इससे बड़े शजाअत के वो मकामात थे जिनकी तशरीह अली इब्न अबी तालिब ने की है। मजहब को कत्ल कर देना जितनी बड़ी शजाअत थी, उससे बड़ी शजाअत ये थी कि जब दुश्मन लुआब दहन मुँह को खूब दे तो सीने से उतारा है। तलवार में
होता रहा। ये शजात की मिसाल ढूंढ के दिखाइए। अफो करने का नाम है शजात, कत्ल करने का नाम शजात नहीं है। तलवार में और यहीं से जनाब अमीर के साथ, जनाब अमीर के किरदार में एक और बात अभी तरह का मैं वक्त देता हूँ उसको कराऊंगा कि जनाब अमीर के किरदार में एक बात और आती है, बिल्कुल दुरुस्त है। सब शियान अली हैं, हम सब या अली कहते हैं, हम बैत अली के लिए हाजिर हों। अगर आज अली तकलीफ लाए, अली हम में से किसी पे बैत का इनकार नहीं करने वाले हैं। हम गुनाह कर करके जाएं बैत करने के लिए, वो बैत का इनकार नहीं करते किया है। तो बड़े बड़े लोगों की जो बार बार मुखालिफतें करके जाते थे, सुबह मुखालिफत करते थे और शाम को बैठ करने पहुंचते लोग पढ़ते थे। सलमान मैंने इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो अलवी हो गया। अलवी होने के लिए दूसरी मिसाल पेश करनी होती है। अलवी होने का मेयार ये है कि आप एक फौज के कमांडर हों, आपने बड़ी मुश्किल से बड़ी मेहनत के साथ एक स्ट्रेटेजी तरतीब दी हो, आपने एक लाजवाब हमला किया हो, आपने दुश्मन के छक्के छुड़ा लिए हो, आपने अमीर लश्कर मुखालिफ के खैमे की तनावे काट दी हो और आपकी तलवार उसका सर जुदा करना चाहती हो और हुक्म इमाम आए हाथ रोक लो, तलवार पलट आए। तारीफ कहती है कि मालिक अस्कर लौटे थे तो उनके दोनों कोहनियों से खून बहा और आंखों से आंसू जारी था कि उनके नीचे मुबारक तर थी और आंसू टपक रहा था। मौला आपका हुक्म था वरना मैं खत्म कर, वरना कहानी खत्म हो चुकी थी। तो ये जो दुनिया में फसाद जाहिर हो रहा है, इस फसाद को रोकने की, फसाद के जिम्मेदार दोनों तरह के लोग होंगे। माफ कीजिएगा मुझे, वो भी जिन्होंने लूट मचा रखी है, मैं भी, क्योंकि क्या मेरे मुंह में अल्लाह ने जबान दी थी। अगर इस जिम्मेदारी से बचना है तो अबूतर बनना पड़ेगा। अगर इस जिम्मेदारी से बचना है तो इमाम तो तशरीफ लाएंगे, उनके तशरीफ लाने तक अल्लाह हम में से, जैसे हम दुआ किया करते हैं ना, दुआ यह पढ़ते हैं कि हमको अल्लाह उनके नाज़रों में शुमार करे और अगर मौत जिसको उसने हम सब के लिए जरूरी करार दिया है वो हमारे और उनके ज़हूर के दरमियान में हायल हो जाए तो हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमारी कब्र से हमें उठा लेना उस वक्त कि हम उनकी सरकार में उनकी नुसरत करने के लिए पहुंच सके। ये दुआ तो है अपनी जगह, मगर सिर्फ इस दुआ के भरोसे काम नहीं चलेगा। उनके आने से पहले वो कीजिए जो अभी मेरे गफारी ने हजरत अली के हुकूमत पर बाकायदा तशरीफ रखने से पहले, तख्ते हुकूमत पर मिंबरे हुकूमत पर जलवा रोज होने से पहले करके दिखाया था। रबता मामूली शहादत नहीं थी। अपने बच्चों को एक बात बता दूं, अब हालांकि हम सब लोग मजलिसों में सारी बातें समझते हैं, लेकिन अगर कनेक्टेड पूरी कहानी है ना, पूरी कहानी अगर कहाँ से शुरू हुई थी और किन मराहिल से गुजरी थी अगर आप समझना चाहते हैं तो अगरचे ड्रामेटाइजेशन की खामियों से पाक नहीं है वो भी। किसी भी चीज़ को आप ड्रामा बना के पेश करने की कोशिश किया तो उसमें कुछ खामियाँ आ जाएंगी, किस्सा कहने वाले की ज़बान की, उसके परसेप्शन की, वक्त की, प्रोटेक्शन की, सारी चीज़ों की, मगर एक बहुत उम्दा मवाद मौजूद है। यूट्यूब पर ढूंढिएगा शहीद कूफा इमाम 25 या 30 एपिसोड में है, आप उसको शुरू से आखिर तक देखिएगा। वो जो मसाइब जनाब अमीर है, जो जनाब अमीर का मैसेज है, जो जनाब अमीर की जिद्दोजहद है, जो जनाब अमीर के मसाइब हैं, वो आपको समझ में आएंगे। फिर मामूली बात थोड़ी है कि
दुश्मन खास जो सिक्किम में फसाद की सबसे बड़ी वजह है। सच पूछे तो ये बताना मुश्किल है कि दोनों में से बड़ा कौन है, अमीर शाम या ये दूसरा वाला, जो अपनी चालाकियों और मक्कारियों में टोकरियों से भी आगे था। जानते हैं कौन? तो जब जनाब अमीर ने उसको मैदान जंग में घेर लिया और उसने पहचान लिया कि हमलावर कोई और नहीं है, खुद अली, कि हमलावर कोई और नहीं है, खुद अली है। आपको पता है तारीख में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा उसने क्या किया। ये भी इसको भी मैं अलग से काम कर रहा हूँ कि ये भी एक इंसानी साइकोलॉजी की एक सीख है कि जो अपने ज़ाहिरी मकासद को किसी भी कीमत पर हासिल करने को तैयार होती है। उसने क्या किया था, अपना सारा जवाब दुकान डाला था और मुझे लगता है मैं होता तो जनाब अमीर ने मुझे हमले के लिए भेजा होता, मैं तो लौट जाता, मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। मुझे खड़ा हो या उसके जवाब बनाते, मगर वो अली थे, फिर वो अली थे, शजाअत और सब्र अली और मेयार जंग अली का, कि जैसे ही उसने ये किया अली का घोड़ा वापस मुड़ा और उसे छोड़ के चले आए। और इसके ऊपर अगरचे शायद मतलब एक ऐसा लतीफा क्या जो तारीख में सब है कि जो उसके दोस्त ने कहा था कि तो शुक्र अदा कर अपनी बरहमगी का कि तेरी जान बच गई। सलवात मैंने इंतजार करते रहे, जैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अली तुम्हारी मिसाल क़िबले की है। लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुम लोगों के पास नहीं जाओगे। तीसरी खिलाफत में जब कुर्बा परवरी हद को पहुंची, जब लोग आजिज़ आ चुके और जब बलवा खड़ा हुआ, तो जहाँ तक रफ़्ए फसाद के लिए जरूरी था, जहाँ तक समझाने के लिए जरूरी था, जहाँ तक जान बचाने के लिए जरूरी था, जब तक वो साहब जिंदा थे तब तक जनाब अमीर उनको अपने पैगाम को पहुँचाते रहे। यहाँ तक के लोगों ने, जिन्होंने बलवाइयों ने घेरा था, उन बलवाइयों ने उनके यहाँ पानी जाना बंद कर दिया। मदीने में किसी की हिम्मत नहीं थी कि पानी लेके अंदर पहुँचा दे। जनाब अमीर खुद मश्क लेकर तशरीफ ले गए और किसी की हिम्मत नहीं थी कि हज़रत अली से कह देता कि नहीं आप पानी बंद है, आप मश्क लेकर नहीं जाइएगा, और उसने जाके पानी पिलाया। तब इन लोगों की जान उस वक्त बची, मगर इनका मशवरा मानने के लिए हक बात सुनने तैयार तो थे नहीं किसी हालत में, इसलिए कि ज़ौक़ में थे। जो नतीजा हुआ वो हुआ और उसके बाद 3 दिन तक मदीने में तरह तरह की मीटिंग्स होती रही। लोग थे तरह तरह की मीटिंग्स करते रहे, क्योंकि आदत हो गई थी ना, वो बात तो मुस्तरद हो चुकी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानशीन अपॉइंट करके गए हैं, खुद मुंतखब करके गए हैं। तो अब तो आवाम को, अब तो उम्मत को आदत हो गई थी कि तरह तरह के तरीकों से खलीफा चुनो। तो लोग खलीफा चुनने के लिए बैठे कि अब किन्हें खलीफा बनाए, अब तो हो चुका, ये भी हो चुका, वो भी हो चुका, इनको बनाए तो उनको बनाए। तो आज तक तो दिखाई देते हैं किसी मीटिंग में नहीं। बाद में इस कत्ल के बाद जितनी मीटिंग हो रही थी तरह तरह की, उसमें किसी मीटिंग में अली नहीं दिखाई देते। और बहुत से लोग बड़े खुश कि अब नेक्स्ट तो हम हैं, अब वो आ ही नहीं रहे तो हम क्या करें बताओ, उनको आना चाहिए था। इससे तो बेहतर है कि गुलाब को चुन लें, लेकिन ये बात आम तौर पर फैली कि वो नहीं आ रहे हैं तो हम लोग जाएंगे उनकी ड्यूटी के ऊपर। और जब लोगों ने इस तरह से हुजूम किया तो कुछ जनाब अमीर फरमाते हैं कि मुझे डर लगने लगा कि कहीं तुम रेले में
حسن اور حسین کو روند نہ ڈالو، تو میں نے اس وقت تمہارے کہیں سردار کے اوپر تمہاری بیعت قبول کی۔ لوگ گئے، پہلی بار پبلک مینڈیٹ کے اوپر، اگر پبلک مینڈیٹ کی کوئی بات کرے تو ایک حکمراں کا انتخاب ہوا۔ صلوات بھیجو۔ اور میں کہوں گا کہ پھر بھی آپ کھلا دیتے ہیں سب کو، جو کرنا ہے سب کو، مگر لوگوں کے اس دباؤ پر کہ عدل چاہیے، عدل چاہیے، عدل چاہیے، عدل کی فریاد پر علی کا اس ٹماٹروں بھری راہ کو قبول کر لینا بھی شجاعت علی میں وہ بات ہے کہ جس کی مثال اور کہیں نہیں ملتی، کیونکہ اب تو تم بہت اطمینان سے کاٹے ہو چکے ہو، اب جاؤ اس کا پھل کھاؤ، لیکن جناب امیر نے قبول کر دیا۔ ایک بات رہ گئی، تو ہمیں علویت چاہیے۔ اگر ہمیں علویت چاہیے تو ہمیں اس چیز سے ہمیشہ ہوشیار رہنا پڑے گا کہ ان وجہوں سے علویت کے مخالف ہوئے لوگ جو بدقسمت سے جو برباد ہیں۔ تین طرح کے لوگ نظر آتے ہیں نا۔ پہلے وہ جو جنگ جمل میں گئے، پہلے وہ جنہوں نے جنگ جمل میں جناب امیر کی مخالفت کی۔ جنگ جمل میں جمع ہونے والوں کا کہ اگر پوری کا جائزہ لیا جائے تو ابھی تک بڑے معتبر لوگ، مگر اتنے دنوں کے تجربے کے بعد ان کی عادت ہو چکی ہے کہ حکومت چاہیے، حکومت پاور چاہیے، منصب۔ اب منصب نہیں ملا تو کسی نہ کسی وجہ سے علی کی مخالفت کر لیں کہ ہمیں شاید اس طرح منصب مل جائے۔ تو ایک تو وہ پہلا، تو کسی بھی علویت کیجیے، میں آپ سے وہ کہہ رہا ہوں، مگر منصب کی لالچ نہیں، منصب کی لالچ نہیں، کسی طرح۔ دوسرا، وہ جو ہمیشہ کا مخالف تھا شجر خبیثہ کا بیج، وہ جس کے خاندانی دشمنی اسلام کے انقلاب سے تھی، وہ جس کی ماں نے جگر چبایا۔ دوسرا، وہ تو صاف صاف کھلا کھلا تھا، پر ہم سب لوگ جانتے ہیں اور اسے اپنے کو الگ رکھتے ہیں۔ اس کی بھی اگر آپ کہیں تو اس کی ساری کی ساری جو ساری کی ساری سیاست کا محور تھا وہ تھا وہی حکومت، پاور، پیسے اپنے پاس۔ اور تیسرا، اور یہ بھی جناب امیر عظیم ترین شجاعت، عظیم ترین مصیبت اور عظیم ترین صبر ہے کہ وہ لوگ جو کل تک ساتھ تھے، جو دہنے بائیں رہتے تھے، جنہوں نے جنگ صفین میں جنگیں کی تھی، وہ لوگ ایک بیک مخالف ہو گئے۔ یہ بڑی خطرناک قسم کی منزل ہے، اور ہم سب ہر وقت استغفار کرتے رہے کہ ہمیں نہروانیوں کے جیسی فکر سے اللہ ہمیشہ محفوظ رکھے، کیونکہ بنو امیہ کی ایسی فکر تو ہماری ہوگی نہیں، کیونکہ وہ ہم جانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں، مگر نہروانیوں جیسی فکر ہو جانے کا بہت چانس ہے، بہت خطرہ ہے کہ شیطان اسی راستے سے حملہ کرے کہ نہروانی بنا دے۔ نہروانیوں کی اگر فکر کی، آپ خوارج جو تھے، بچوں کو بتا رہا ہوں، خوارج جو تھے اس کے بارے میں اگر آپ اس کے بارے میں پڑھیں گے تو ان میں سے ہر ایک حافظ قرآن تھا، سب کو قرآن ازبر یاد، صرف 30 دن نہیں، دائم الصوم، قریب سال بھر روزے رکھتے، ساری رات نمازیں پڑھتے،
माथों पर इतने बड़े बड़े खट्टे पड़े हुए। फिर काहे को जनाब अमीर से मुखालिफत हो गई इनकी, फिर इनकी दुश्मनी की वजह ये बहुत ही नाजुक मरहला है, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जब हम इसके एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था ना, मुकरात, अगर हम कभी खुदा न खास्ता मुकरात हो जाते हैं तो इसका खतरा बहुत हो जाता है। जब कभी जहन में ये बात आने लगी कि हम दुरुस्त बाकी नादुरुस्त, वहां से ये खतरा शुरू होता है। जहां सोचा हम आबिद दूसरे आबिद नहीं, जहां सोचा हम नमाजी दूसरे नमाजी नहीं, जहां सोचा यही मंतिक आगे चल के आएगी हम हुसैनी दूसरा हुसैनी नहीं, जहां सोचा ये नहीं किया तो वो जहन मैं कभी नहीं दिखाई देता कि मैं क्या करता हूँ, उसमें ये दिखाई देगा कि फला वो उसकी नमाज कज़ा होती है वो जहन्नुमी है, फला उसको हमने गजल गुनगुनाते सुन लिया। देख लीजिएगा आपने को जो हमने सीरियल बताया बहुत मुश्किल किताबों के ऊपर बेच है वो सीरियल, सिर्फ इस जुर्म पर कि तुम गजल गुनगुनाते जा रहे थे एक सहाबी रसूल और उनकी बीवी को जो प्रेग्नेंट थी शहीद कर डाला पकड़। कोई अरब थे, शायरी की फितरत में थी, कोई कुफर नहीं बक रहे थे, धर्म में गजल गुनगुनाते हुए जा रहे थे, वो भी अल्लाह की कुदरत के बारे में और उसके बारे में थी। तो ये क्या, ये हराम है, पकड़ो पकड़ो और कत्ल करो, पकड़ो और कत्ल करो। आजकल आप देख रहे हैं इसी फितरी रुझान के ऊपर खेलते हुए आज इस्लाम के चेहरे को ऐसा जलील और मस्त किया है दुनिया के सामने कि लोग ये समझते हैं कि इस्लाम का काम ये है कि पकड़ो और कत्ल करो। इसने ये कहा इसको कत्ल करो, उसने वो कहा उसको कत्ल करो, उसने नमाज पढ़ते हमने नहीं देखा उसको कत्ल करो, पढ़ते देखा तो मेरी तरह पढ़ते नहीं देखा उसको कत्ल करो, मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलाई उसको कत्ल करो। तो ये जहाँ से ये बात ठहरी कि मैं तो सही और दूसरा गलत, वो गलत वो गलत वो गलत, तो फिर सब गलत दिखाई देने लगते हैं। यहाँ तक के बात यहाँ तक पहुँचती है कि माज़अल्लाह जनाब अमीर का इब्न मुज्जिम का ये मानना